This is Rupa Mutatia. In previous chapters, I will explain the sums and introductions of fractions and decimals from textbook. Now, in this video, I will explain some important sums of fractions and decimals from workbook part 2. Okay, students, in this video, I will explain some important sums from workbook. So this is the sums you can also write practice at home. So students, in next part we will see some important sums in workbook. First, question number 5. Arrange the following in ascending order. यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको हमको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. So but yeah, it's little bit difficult because here numerator and denominator both the numbers are there. So here denominator all are unequal numbers. So first we will take LCM in all the denominator. After that we can equal the denominator, then arrange the ascending order. So students, in notebook you have to first take LCM and equal the denominator. After that we will arrange the ascending order. Next, question number 6. Fill in the blanks by using the symbol. So in this question also same. First we can take LCM and after that we will equal denominator and use and put a proper symbol. Next, question number 7. Solve 3 by 8 plus 5 by 6. So in this question we will take first LCM 8 and 6. So students, in LCM you have always start with table 2. If 2 is not possible, then we take next table 3. So here 8 and 6 are there, both the numbers are possible with 2. So 2 4s are 8, 2 3s are 6. Now this number is also possible in 2 table, 2 2s are 4, 3 and 2 1s are 2, 3. Now here 3 is not possible because 3 is a even number. Then we move on next table, 3 1s are 3. Then the number is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. Answer is 24. Now we will equal the denominator, 3 by 8 plus 5 by 6. Now we will see in 8 table which number you can multiply with 8, you will get 24. So 8 3s are 24. So the same number is multiplied with the numerator also. So 3 multiply 3 upon 8 multiply 3 plus 6 multiply 4, we get 24. Then in numerator 5 multiply 4. The answer is 3 3s are 9 upon 24 plus 5 4s are 20 upon 24. So now the denominator is equal, we will add the number. 9 plus 20 upon 24 is equal to 29 upon 24. Now the improper fraction is converted into fixed fraction. So students, in all these sums, at last you will converted into a mixed fraction. So in this way you can write solve all the sums. The next 5 is 3 2 by 5 plus 2 3 by 4. Here mixed fraction are there. First we will convert mixed fractions into improper fraction. 5 3s are 15, 15 plus 2 17 upon 5 plus 4 2s are 8, 8 plus 3 11 upon 4. Now after that we will take a LCM, then we will add the sums. So students, in this way you can write question number 6 7 8 also. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व. इसके पहले हमने एडिशन देखा है, अभी हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं. सेम टू सेम वही एलसीएम मेथड यूज़ करना है, बट उसमें आपने एडिशन यूज़ किया है, इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है. बस एक ही डिफरेंट है, बाकी सब सेम मेथड है. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमाइंड दैट इन आफ्टर लास्ट आंसर द आंसर शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन.
Next, question number 9. Multiply and reduce to lowest form if possible. आपको जितना पॉसिबल है उतना हमको reduced form करना है. First 3 by 4 multiply 12. So now we will cut 4 ones are 4, 4 threes are 12. After that we will not reduce the number. So we will multiply the number. Answer is 9. So in this way you can reduce this number also. Third question, 20 multiplied to 3 upon 10. Here mixed fraction are there. First we will convert into improper fraction. So 10 2s are 20, 20 plus 3, 23 upon 10. Now 20 multiplied 23 upon 10. Here common 0 are there. 0 0 cut. So answer is, now you multiply the numerator. Answer is 46. Next fourth, 2 by 3 multiply 15 upon 22. So जितना पॉसिबल है उतना हमको लोवेस्ट फॉर्म करना है. सो मल्टीप्लिकेशंस में आपको देखना है ऊपर नीचे कट हो सकता है, क्रॉस में कट हो सकता है, बट न्यूमरेटर कट नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर कट नहीं हो सकता है. ऑपोजिट फॉर्म में ही मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स दोनों कट हो सकते हैं. सो 2 1s are 4 2, 2 11s are 22, 3 1s are 3, 3 5s are 15. आंसर इज 5 upon 11. So in this way you can write question number 5, 6, 7 and 8 also. 8 में आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, बाद में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड 16 upon 25 divided by 24 upon 35. So students, in division I have already explained that in before division you can write the same number, but in after division you can convert it into reciprocal form. So sign will be also changed. So students, multiplications and divisions दोनों में आपको आप जितना नंबर्स लोवेस्ट फॉर्म कर रहे हैं कट कर रहे हैं उतना ही आपको इजी होगा. So in this way you can cut the number and answer is 14 upon 15. So ऐसे ही आप बाकी सम्स भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड. सो ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पी क्यू फॉर्म में. इसे ही आपको पी क्यू फॉर्म करके मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है. फाइंड क्वेश्चन नंबर 13, 0.3 multiply 0.2. सो इट्स अ डेसिमल नंबर विथ मल्टीप्लिकेशन. दोनों हमारा डेसिमल नंबर है. पहले दोनों डेसिमल नंबर्स को हमको पी क्यू फॉर्म में फॉर्म करना है, बाद में कट करके आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड 0.8 divided by 4. So now 0.8 decimal number is converted into improper fraction PQ form. 8 upon 10 divided by 4 upon 1. So 8 upon 10 divides and is converted into multiplication. Then 4 upon 1 is reciprocal of 1 upon 4. Now we will cut the number. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 1s are 2, 2 5s are 10. Answer is 1 by 5. So in this way you can write all the questions. We will start some problem sums in workbook. First, question number 15. Sheila ate 4/15th part of a watermelon while Deepa ate 3/5th part of it. Find the total fraction of watermelon they ate. So students, in problem sums, first you have to write whatever informations are there in questions, you have to write the informations in the answer. So first students, आप शीला से लेके ईद तक आप पहले informations लिख सकते हैं. So students, first ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस वीडियो बना के भेज रही हूँ. इसके कंटिन्यू थ्रू पीछे आंसर्स का वीडियो में इसमें ऐड कर रही हूँ. सो फर्स्ट मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन आफ्टर दैट आई विल
राइट द आंसर्स इन नोटबुक। उसके बाद मैं आपको इसके साथ कंटिन्यू आंसर्स भी बेच रही हूँ। सो शीला 4/50 पार्ट वाटरमेलन ईट कर रही है और दीपा 3/5 पार्ट। सो उसका टोटल फ्रैक्शन चाहिए। सो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग 4 3/4 centimeter length and 3 1/2 centimeter breadth। सो यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ दोनों दिए हैं। सो वो रख के हम पेरीमीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 17। अ पीस ऑफ वायर is of length 15 1/2 centimeter. If a piece of 3 1/5 centimeter length is cut from it, what is the length of wire left? सो टोटल लेंथ का वायर है 15 1/2। इट मीन्स ये जो है यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। इट मीन्स 2 5 15, 15 + 1 30, 2 5 30, 30 + 1 31/2। सो टोटल वायर ऑफ लेंथ इज 31/2। तो उसमें से 3 1/5 सेंटीमीटर लेंथ कट हो चुका है। तो इट मीन्स 5 3 15, 15 + 1 16/5 लेंथ कट हो चुका है। सो अभी हमको फाइंड आउट करना है तो कितना उसका कट होने के बाद टोटल लेंथ कितना बचा है। क्वेश्चन नंबर 18 करने की ज़रूरत नहीं है। Question number 19. Out of 48 students, 11/12 part of student passed in English and 9/16 part of students passed in Maths. Find the number of students passed in both the subject. So total 48 students है। सो उसमें से यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स है वो नहीं हमको मेशर दिया हुआ है, हमको सिर्फ इतना मेशर से पार्ट में यहाँ पे स्टूडेंट्स को मेशर है। सो हमको फाइंड आउट करना है कितना स्टूडेंट्स इंग्लिश और मैथ्स में पास हुए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20. सुषमा रीड 2/15 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 hour। सो सुषमा रीड कर रही है 1 hour में 2/15 पार्ट। हाउ मच पार्ट ऑफ बुक विल शी रीड इन 2 1/2 hours। सो 2 1/2 मीन्स 2.5 hours में वो कितने बुक रीड कर सकती है, ये आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। 21 नहीं करना है। 22. A car runs 15 kilometer using 1 liter of petrol. How much distance it will cover using 1/5 liters of petrol? सो 1 लीटर में 15 किलोमीटर जा सकते हैं। सो 1/5 लीटर्स में कितना पेट्रोल कितना किलोमीटर्स वो कार रन हो सकता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 23. Each side of a regular polygon is 3 1/5 centimeter in length. The perimeter of the polygon is 21 centimeter. How many sides does the polygon have? So students, our regular polygon का लेंथ है 3.5 एंड पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन इज 21. सो हाउ मेनी साइड्स ऑफ पॉलीगॉन डज हैव? सो ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 24. अ कार रन्स 86.4 किलोमीटर यूजिंग 4.8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 4.8 लीटर्स पेट्रोल में कार रन हो रहा है 86 किलोमीटर। सो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस वो कवर कर सकते हैं। सो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 22 की तरह है। सो स्टूडेंट्स, ये अभी आपने क्वेश्चन देख लिया है, इन सब का आंसर्स ये वीडियो में मैं आंसर्स कंटिन्यू कर रही हूँ। नाउ वी विल स्टार्ट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15. शीला ate 4/15 पार्ट ऑफ अ वाटरमेलन एंड दीपा ate 3/5 पार्ट ऑफ इट। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही है, ये आपको पहले स्टार्टिंग में लिखना है। देन को लास्ट नेक्स्ट वन इज टोटल फ्रैक्शन ऑफ वाटरमेलन। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको टोटल फ्रैक्शन ऑफ वाटरमेलन। सो 4/15 + 3/5।
So here both the denominator are unequal. So first we can equal the denominator. So 4/15 plus 3 5 यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 15 है, तो 5 के टेबल में 15 पॉसिबल है। सो हम 15 को रख के डायरेक्ट 5 के साथ 3 मल्टीपल कर सकते हैं। सो 5 3 सा 15, इन न्यूमरेटर ऑल्सो वी कैन मल्टीप्लाई द 3। सो 3 3 सा 9, 4 प्लस 4/15 प्लस 9/15। So now we can take a common number 15, 4 plus 9, आंसर इज 13/15। सो बहुत ईजी है, आपको आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट में लिखना है 10 टोटल फ्रैक्शन ऑफ वाटरमेलन बोथ दे आर ईट इज 13/15 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लेंथ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 3/4। सो 4 3/4 को हम सॉल्व करेंगे तो 19/4 मिलेगा, क्योंकि 4 3/4 हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 3 1/2 इज इक्वल टू 7/2। सो नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ इज 19/4 प्लस ब्रेथ इज 7/2। Now we can take a LCM. So 2 19/4 plus 7, 2 multiply 2, you have to get the 4, then numerator also you can multiply 2. So answer is 2 19/4 plus 14/4. So 2 bracket 19 plus 14/4. So 2 multiply 19 plus 14, 33/2, 33/4. So now we will cut the 2 1s are 2, 2 2s are 4. So 33/2 you can convert it into mixed fraction, is 16 1/2 centimeter. सो 2 और ये 2 और 4 को कट कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अभी क्योंकि ये बोथ ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो आपको मिलेगा 16 1/2 सेंटीमीटर। Thus the perimeter of a rectangle is equal to 16 1/2 centimeter. Next question number 19. क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितना वायर बाकी है। तो इट मीन्स दोनों को आपको माइनस ही करना पड़ेगा, तो आप माइनस कर सकते हैं। जैसे 15 में आपने प्लस किया है, जैसे 17 में आपको माइनस करना है, 18 करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 19, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 11/2। सो 12 और 48 को हम कट कर सकते हैं। 12 1s are 12, 12 1s are 12, 12 4s are 48। सो 4 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 44। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ्स। सो सेम टोटल 48 स्टूडेंट है, मल्टीप्लाई मैथ्स का पार्ट है 9/16। So 16 1s are 16, 16 3s are 48. So now we can multiply 3 multiply 9, answer is 27. Thus total 71 students are passed in both the subject. Next 20. Sushma read 2/15 part of a book in 1 hour. So we will now divide two parts. One is part of book and next one is hour. हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इजी मेथड है, एक पार्ट ऑफ बुक एंड नेक्स्ट वन इज आवर। सो पार्ट ऑफ बुक में हमको लिखना है 2/15 और आवर आएगा 1। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2 1/2 आवर्स में वो कितना पार्ट ऑफ बुक रीड कर सकते हैं। सो 2 1/2 ये आपका आवर है, सो आवर के नीचे आपको लिखना है। अगर हम उसको शॉर्ट करेंगे तो 5/2 आएगा। सो कितना पार्ट ऑफ बुक होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। So 5/2 multiply 2/15 upon 1. So 5 1s are 5, 5 3s are 15, 2 1s are 2, 2 1s are 2. So रिमेनिंग होगा 1/3, और जो यहाँ पे 1 नीचे डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1। सो आंसर इज 1/3 पार्ट। Thus सुषमा रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ बुक इन 2 up to 1/2 hours. सो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 21 नहीं करना है, 22 भी आपको ऐसे डिवाइड करके रखना है, 1 किलोमीटर और 1 लीटर का।
किलोमीटर में आएगा 15 और लीटर में आएगा 1। सो के नीचे 1/5 का कितना किलोमीटर होगा। सो 22 में भी आपको वैसे ही कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट 23, side of regular polygon is 3.5 centimeter length. The perimeter of polygon is 21 centimeter. So number of side is equal to 21. पेरीमीटर जितना है उसको ऊपर लिखना है, नीचे लेंथ आएगा। लेंथ में आपको दिया हुआ है डेसिमल में। सो डेसिमल हमको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो इसलिए हमने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। सो 21 मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर जो है अगर वो ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो 21 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 35। सो आंसर इज 6 सेंटीमीटर। दस द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज 6 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया होगा। मैंने टू पार्ट की डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट था टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन सम्स और दूसरा पार्ट था वर्कबुक का। सो जितने आपको जितना समझ में आए उतना आप नोटबुक में वर्कबुक एंड टेक्स्ट बुक लिख सकते हैं। अगर और भी आपको कुछ डाउट्स है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए या थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ रहा है सॉल्व करने में, तो आप स्कूल स्टार्ट होने के बाद मुझसे डिस्कशंस कर सकते हैं। सो मैं अगेन एक बार आपको रिपीट कर सकती हूँ। थैंक यू।